Hello everyone, welcome to today's video. It's a lazy Sunday afternoon, and I just got to know that my junior Aryan has secured a rank 104 in this INI-CT, whose result just got declared yesterday night. And so, Aryan, first of all, bhai, lots of congratulations to you. Finally, back at AIMS. एम्स सोनियंस हाँ। को बड़ा ना प्यार होता है एम्स से। वो ना एक जैसे क्रीपर होता है, एक पेड़ को छोड़ता नहीं। आई थिंक एम्स सोनियंस का एक इमोशन होता है एम्स के लिए कि दे डोंट वांट टू लीव एम्स। सो हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस आर्यन, ग्रेट रैंक, ग्रेट अचीवमेंट। Thank you so much, yaar. I'm much relieved now. PG preparation was really stressful and yes, I think इतनी पढ़ाई तो कभी नहीं की होगी यार, मतलब लाइफ में जितना इतना करना पड़ता है, एंड विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्टेक, एंड लॉट ऑफ इमेजिनरी सफरिंग इन योर हेड कि सही ठीक, में। आई नो, मतलब हाँ कि there are a lot of other things as well, but ठीक है, there is a lot of stress involved with PG preparation. Finally everything got settled. पीएमटी और पीजी प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट बॉल गेम है। पीएमटी में ना आपको तीन ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें ऑल्दो कंपटीशन हम्म। बहुत ज्यादा है, बट समहाउ द प्रेशर फील नहीं होता। मतलब आप ना एक तो कंटिन्यूअसली 2 साल से पढ़ रहे होते हो, हम्म। गेम में भी होते हो, आप पेरेंट भी एकदम डटे पड़े होते हो कि हाँ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। पीजी में आप भी थोड़े लैक्स हो जाते हो। आपने आखिरी 6-7 महीने में स्टार्ट की होती है, हाँ। अभी 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक पूरा ही डिफरेंट बॉल गेम है। थोड़ा मॉन्स्टर सा लगता है पीजी प्रिपरेशन ना। It is monstrous actually. There's so much to cover, so much to revise, so much test to appear, so much analysis to be done, so many different type of strategies which may or may not be adopted, which may or may not work for you. There's so many examples, in your seniors. There are seniors जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की एमबीबीएस में, बट एंड में फोड़ दिया. There are seniors हाँ, who are doing वही different वही। things, एंड में फोड़ दिया. तो अब कौन सा एग्जाम्पल पिकअप करो अपने को, मतलब एक एग्जाम्पल को फॉलो करो, किसकी एडवाइस फॉलो करो. There are so many things. And UG time was pre UG time, and वो नीट यूजी टाइम वाज मच इजियर. मतलब उस समय सिर्फ पढ़ाई करते थे, स्कूल गए, वापस आए, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ करते नहीं. यहाँ पे अब पूरे 3-4 साल आप मस्ती मार रहे होते हो, ठीक है, आप प्रॉफ में अच्छा कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर पीजी फिर एकदम टारगेटेड प्रिपरेशन, तो फिर स्ट्रेसफुल हो जाती है वहाँ पे. So I think just a brief introduction about Aryan. Aryan does not need any introduction. Aryan mentors a lot of PMT students and MBBS students on how to do well in medical college and pre-medical tests. And he has a very good active social media YouTube handle as well as an Instagram handle, and he runs NEET Prep simultaneously. And हम्म. I think आर्यन को सभी लोग जानते हैं। मुझे आई थिंक थोड़े कम लोग जानते हैं, सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अ 2012 बैच एम्सोनियन फ्रॉम एम्स दिल्ली, डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम एम्स दिल्ली from 2012 to 2017, and subsequently my PG from PGI Chandigarh in radiology. So in my PG entrance, I secured a rank 4 in AIMS PG and a rank 11 in PGI Chandigarh. And abhi currently I'm back at my alma mater. So यहाँ पे I'm doing the senior residency in radiology. तो हम्म. आर्यन, दैट बीइंग सेड, एक ब्रीफ टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं। व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? उससे हम्म. पहले क्या कर रहा था, उसमें क्या किया, और फिर जब इंटर्नशिप में आया उसमें कैसे स्ट्रैटेजी चेंज की? Yes. So I started my preparation, basically keeping PG in mind, in third year, and especially during the lockdown. And just before the lockdown, also I started attending offline classes of the popular coaching institutes in Delhi, and then from there only I got orientation regarding, okay, this is how you need to go about PG preparation. And that prof studies is a different ball game. You learn a lot of things there, but यहाँ पे again you have to get into the MCQ mode, and you have to rule out options, and that is how you can do better than others with limited amount of information in your head, because end may there will be 19 subjects, and everything you cannot remember, everything will not stay in your head, and that is also, you know you get to know that thing, that reality check, once you give prof में आपको समझ में आ जाता है कि भाई, मतलब स्पेशली एम्स में प्रॉफ में थर्ड फोर्थ ईयर सब्जेक्ट साथ में आ रहा है. यू गेट टू नो कि थर्ड फोर्थ ईयर के ही थ्योरेटिकल चीजें जो लिमिटेड पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको याद नहीं रह रहे. तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट yourself to know all the 19 सब्जेक्ट का अच्छे से डेप्थ में थ्योरी? सो यू हैव टू रिलाई अपॉन एमसीक्यू गेसिंग स्किल्स, एंड स्ट्रैटेजी आपकी पेपर अटेम्प्टिंग की अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें. थर्ड ईयर से आप फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आप बेसिकली प्रॉफ ओरिएंटेड ही पढ़ते हो, राइट, एंड टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होते. थर्ड ईयर से आपको लगता है कि हाँ, मतलब एक डेडिकेटेड एक सोर्स नोट्स का होना चाहिए, जिसमें आप चीजें ऐड कर लो तो आपके प्रॉफ के नोट्स भी बन जाए,
एंड उससे आप सब्सट्रैक्ट कर लो, सो आपके पीजी प्रिपरेशन की भी चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। सो थर्ड ईयर से बेसिकली शुरू किया, एंड जैसे मेरे बैचमेट्स ने शुरू किया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थर्ड ईयर से ही शुरू करते हैं। अब एक पीजी को दिमाग में रखना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, आई नीड टू गेट अ गुड रैंक और अ डिसेंट रैंक, पीजी पढ़ना शुरू करते हैं पीजी के हिसाब से। So I think as you said कि थर्ड ईयर में you had a primary source. So मतलब irrespective हर of सब्जेक्ट। which हम्म। source it is, I think हम्म। different source किसी के लिए भी हो सकता है वो. But all हम्म। online platforms I think now offer a similar set of हाँ। content. So हम्म। उसका since lockdown आ गया था तेरे पास, so you switched to an online video format for your primary source. एंड हम्म। साइमल्टेनियसली उसके नोट्स थे. तो थर्ड फोर्थ हम्म। में तो तूने वीडियोस प्लस नोट्स देख के अपने प्रॉफ की तैयारी की, प्लस साइमल्टेनियसली जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रॉफ में बुक से पूछे जाते थे वो बुक से पढ़ लिए. नाउ हाँ। नाउ कम्स योर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में तूने कैसे स्ट्रैटेजी चेंज की, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट सो सेकेंड में पढ़ना है तब. हाँ, so internship में the main lagging subjects were the first and second year subjects, right? So my primary focus initially in the first few months of internship was to give sufficient time to first and second year subject. I would recommend all the interns to choose a good teacher for first and second year subject. Online off, I think online would be a better option during internship. At TNDs के लिए you can go offline, Saturday Sunday you can attend it, or online भी अब the TND is equally good, so you can do it online also TND, but please do TND for first and second year subject, because basically you lose touch of that those subjects, and TND करने से you get to know कि okay, these are the type of question they are going to ask from subject that you read 3-4 years ago. And but yeah, because the questions are now being clinically asked, so third fourth year के subject and prof की पढ़ाई करते वक्त भी एटलीस्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ईयर में एनाटमी के जो क्लिनिकली रेलेवेंट पॉइंट्स है, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकली रेलेवेंट पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म हो गया, वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फिजियो की चीजें आपको कोई भी आप टीचर से अगर पढ़ रहे हो तो मेडिसिन में फिजियो पढ़ा ही देते हैं वो स्टार्टिंग में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, राइट? तो इंटीग्रेटेड टीचिंग से काफी हेल्प हो जाती है, बट प्लीज डू नॉट मिस्टेक दैट टीचिंग फॉर द जनरल फिजियोलॉजी और द जनरल pharmacology that you need to learn, or general pathology that you need to do from a primary source of those subjects in the first 2 to 3 months of your internship. General part of all the subjects is very important ओके. first second year के. तो लेट्स से तूने इंटर्नशिप में स्टडी स्टार्ट करी, तो हम्म. फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर तेरे पास एक प्राइमरी सेट ऑफ नोट्स थे, हाँ, मेन नोट्स. सेकेंडरी एक मेन नोट्स हैं. तो वो तू हम्म. रिवाइज कर पाया है नहीं? अगर वो नहीं कर पाया तो तूने फिर सोर्स ऑफ वीडियोस या नोट्स क्या रखा अपना, वो पार्ट कैसे नेविगेट किया? क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का यही दिक्कत होता है कि सर हम प्राइमरी सोर्स, हमारे बहुत बल्कि नोट्स हैं, 300 हम्म. 400 पेजेस के नोट्स हैं, कुछ कुछ के 900 पेजेस के नोट्स हैं, स्पेशली मेडिसिन वगैरह. उनको सर हम्म. कैसे कंप्लीट करें, कंसाइज रिवीजन कैसे करें? सो फर्स्ट सेकेंड ईयर जैसे आपने इंटर्नशिप में कर लिया, स्टार्टिंग में जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफ में आपने थर्ड फोर्थ ईयर तो किया, आपने रिसेंटली पढ़ा है थर्ड फोर्थ ईयर, सो आफ्टर दैट जैसे मैंने तो अपनी प्रिपरेशन जो है मेरा, मैं यूट्यूब और अपनी नीट प्रेप एंड क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज को टाइम देने लग गया था, सो इसलिए नवंबर का अटेम्प्ट मैं नहीं दिया, बट मैंने और मेरे बैचमेट्स ने यही किया था, एंड मैंने फिर नवंबर ऑनवर्ड्स जब मई की प्रिपरेशन की और फरवरी से हार्डकोर प्रिपरेशन शुरू की, तो अब मैंने कैसे यही करें? रियलाइज किया कि फर्स्ट सेकेंड ईयर को मेरे को बहुत शॉर्ट वे में कवर करना है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे एनाटॉमी की मैंने टीएनडी कर ली, हाँ. एंड टीएनडी में ही आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचर ने बताए हैं आपको, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपने लिस्ट बनाई है, वो आप मेन नोट्स में हाईलाइट कर लो। अगर आप मेन नोट से स्क्रीनशॉट लेके अलग से एक छोटी कॉपी बना सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में आईपैड पे, तो अच्छा होगा, राइट? बट वो नहीं कर सकते तो मेन नोट्स में ही आप टिक मार्क कर लो कि ये टॉपिक्स पढ़ने। फॉर एग्जांपल मैंने एनाटॉमी में क्या किया, मेन जो बड़े नोट्स हैं उससे मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना चाहता था अलग से, मैंने सब कुछ आईपैड पे ही किया, सॉफ्ट कॉपी में किया, राइट? सो मैंने पर्पल टिक मार्क कर लिए मेन नोट्स में कि यही मेरे को पढ़ के जाना, और वही पर्पल टिक मार्क्स में मैंने क्वेश्चन भी मार्क कर दिया अगर पीवाई क्यूज में वो टॉपिक पूछा गया ठीक है. तो तो। एक एक टीएनडी फॉर एनाटॉमी के लिए, लेट्स से एनाटॉमी हम्म. परफेक्ट, टीएनडी एक बेस हो हम्म. गया, फिर मेन हम्म. नोट में पीवाई क्यू बेस्ड टॉपिक्स हाईलाइट हो गए. तो एंड पीवाई सर ने जो टीएनडी में बताया था टॉपिक्स वो भी मैंने मार्क कर वो भी दिया। हाईलाइट तो हो गए. तो एक एनाटॉमी का रिवीजन कैप्सूल बन गया कि टीएनडी प्लस सर ने जो टॉपिक्स बताए हैं वो, प्लस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो हैं वो हम्म. सब
क्वेश्चन या गोला मार दो, टिक मार्क कर दो, क्यू 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 लिख दो, वो आपके ऊपर है, बट हाँ। एटलीस्ट दिस इज हाउ यू कट शॉर्ट द इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट पार्ट. एंड देन फिर बायोकेमिस्ट्री में उसमें मैंने रिवीजन वीडियोस ही देखे, रिवीजन वीडियोस के जो नोट्स थे उसी को मैंने अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन बना दी. दो इन द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप आई हैड डिसाइडेड कि मेन वीडियोस के नोट्स जो है मैं तो प्राइमरी सोर्स प्राइमरी. ऑफ रिवीजन, हाँ प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवीजन बनाऊंगा, उसमें पर्पल टिक मार्क या फिर समथिंग ऑफ सॉर्ट दैट सॉर्ट आई विल डू. बट मेरे पास एंड में टाइम नहीं था, सो आई डिसाइडेड कि मैं दिस बायोकेमिस्ट्री के सारे जो रिवीजन वीडियोस है वो देख लेते हैं. नोट्स, मेन नोट्स से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिवीजन वीडियो में नहीं कवर की गई हैं, पीवाईक्यूज में दिख रही है, वो चीज मैं मेन नोट से, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है, आई कैन ऐड, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर सकता हूँ, वो कर दिया मैंने. तो एक बायोकेमिस्ट्री की मेरी रिवीजन नोट्स जो है रेडी हो गए खुद के, जिसमें मेन नोट से भी चीजें एडेड. बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन नोट्स नहीं थे? बाकी के थे यार, बट थिंग इज कि क्योंकि एक बार मेरे को लगा कि ये सब्जेक्ट यहाँ से देख रखा है तो वहीं से कर लेता ओके, हाँ, तक मेक सेंस कि आपने जो प्राइमरी सोर्स पढ़ रखा है, आई थिंक एक हूँ. बार उसका यू हैव गॉन थ्रू, इट्स इजियर टू रीड इट सेकंड टाइम. इवन इफ हाँ. इट इज इजियर टू रीड दैट सेम सोर्स अगेन सेकंड टाइम. एंड आप यस. उस साथ साथ या तो रिवीजन वीडियोस देख लो टू नो विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो टू नो विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. So I हाँ. think this you did for all first, second year subjects and minors as well. Uh, no, not for minors. I should have done that, but minors, whatever I did from the main notes now, because minors, I thought, no, I can go through them quickly, and yeah, matlab, I will just read it once. For example, this for psychiatry, everyone almost reads Praveen Tripathi sir book, right? So वही बुक मैंने वो जल्दी जल्दी फ्लिप कर ली, बिकॉज उसको प्री प्रॉफ के लिए भी पढ़ा, प्रॉफ के लिए भी पढ़ा, तो उसका एक मेमोरी बनी हुई थी कि ठीक है इस पेज पे ये मेंशन है, ये सारी चीजें, तो साइकिल एंड में मेरे को रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी जब टाइम की क्राइसिस I think थी, मैंने एक भी बार पढ़ रखा. लाइफ में मैंने आईएमएस स्मार्ट टाइम पे कोचिंग चली थी आईएमएस, उसके नोट्स पढ़ रखे थे प्रॉफ के टाइम पर ही. तो आई थिंक मैंने भी वही करा था कि जो पहले प्राइमरी सोर्स पढ़ रखा है प्रॉफ सब्जेक्ट, वही सेम थिंग यू रीड इट अगेन फॉर योर पीजी एंट्रेंस. आई थिंक अगर कोई हाँ. सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर रखा, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो इसमें इट इज अ गुड आइडिया कि आप रिविजन नोट्स को प्राइमरी नोट्स बना लो अपने. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली. दिस द सेम हैपेंड विथ मी इन फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री. मतलब पहले पढ़ रखा था बायोकेमिस्ट्री, बट वो कुछ याद नहीं था ना. आई स्टार्टेड इन इंटर्नशिप, 1 साल हो गए थे, तो ऐसे कुछ याद नहीं था. मैंने सोचा कि रिवीजन नोट्स को ही प्राइमरी नोट्स बना लेते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा होगा वो ऐड कर लेते हैं, और इतना फर्क ट्रस्ट में एंड में नहीं पड़ता है. इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेन मेन टॉपिक्स कवर करके चले गए, कहीं से मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा होगा, उसमें आपको एजुकेटेड गेस ही लेना है, राइट? सो फर्स्ट सेकंड ईयर ऐसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे. एंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप रिवीजन वीडियोस पे फोकस करो. मेन नोट से जो ऐड कर सकते हो आप कर लो, वरना अगर आपको लग रहा है कि रिवीजन नोट्स आपके लिए थोड़े नए फॉर्मेट में है, या फिर कोई डिफरेंट टीचर है, आपको प्राइमरी नोट से ही करना है अपने मेन नोट से, तो उसमें एक स्पेसिफिक कलर का हाईलाइटर यूज करके आप मार्क कर लो. बट प्लीज रिमेंबर, दिस प्रोसेस इज वेरी एग्जॉस्टिंग जब आप रिवाइज कर रहे होते, बिकॉज आई हैव सीन दिस. बायोकेमिस्ट्री इट वाज वेरी स्मूथ बिकॉज अलग से मेरी रिवीजन नोट्स थी, राइट, अलग फोल्डर थी. बट फिजियो में मैंने क्या किया था, मेन नोट्स में ही पर्पल टिक मार्क कर रखे थे. अब 300 पेजेस के फिजियो के नोट्स में पर्पल टिक मार्क है. अब पर्पल टिक मार्क देखोगे पर बीच में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो, तो वो कंजेशन हो जाता है. हाँ. हाँ. This my सो cat ही मुझे बहुत परेशान कर रही है तब से लेके अभी. हाँ. गो तो इसका हर नेम इज एओसी एंड शी इज अ वेरी एक्टिव एंड अफेक्शनेट कैट. तो बीच में आती रहेगी फ्रेम में. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सो आई थिंक मेडिसिन में एक सब्जेक्ट है, इसमें लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज अब मेडिसिन ना छोड़ सकते हैं और मेडिसिन ना पढ़ सकते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी है. तो तरीका क्या है मेडिसिन कवर करने का? आई थिंक यू तूने क्या हैव किया टू मेडिसिन, फ्रैंकली तूने क्या किया मेडिसिन में? लेट्स हियर इट. I went for the short notes of medicine. I went for the short notes of medicine and I blindly followed it कि okay मतलब this is the only thing that I can do. And plus थर्ड फोर्थ ईयर में जो मेडिसिन पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी मैंने मेडिसिन, सो उसके कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करते हैं. सो इफ यू आर अ थर्ड फोर्थ ईयर स्टूडेंट राइट नाउ, आई वुड से इफ यू आर रीडिंग मेडिसिन इन डेप्थ, it will be very useful to you. It लेटर will be ऑन very काफी useful. करना है.
हाँ, plus when you're reading medicine in depth, you're covering relevant physiology, sometimes biochemistry and pathology. All of that is getting covered, and all the clinically relevant point of pharmacology is also getting covered. So when you will be revising the core pharmacology during internship, you will realize that you will be grateful to yourself. Ki, thank God I read medicine at in such a great depth. So I was really glad. Ki, okay, ठीक है. When I'm giving GTs, there are 21 questions of medicine. I am getting 19 correct without reading medicine for 1 year. Right. Yeah. So I was really happy कि okay ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि आंसर बी होगा, बट बी एंड सी में आई कैन मेक एजुकेटेड गेस बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द पेरिफेरल नॉलेज दैट आई हैव, Right. सो तो दैट वे. फाइनली प्रॉफ की सब्जेक्ट के पास एडवांटेज यही है कि आपने जस्ट प्रॉफ दिया होता है, तो इंटर्नशिप में इवन फॉर देम रिवीजन वीडियोस वर्क रियली वेल इवन दो दिस सिलेबस इज ह्यूज। बिकॉज आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होता है तो यू जस्ट नीड रिवीजन वीडियोस टू क्विकली कीप द सब्जेक्ट फ्रेश इन योर माइंड। राइट, सो कम टू द एग्जाम पर से, ठीक है, क्योंकि आई थिंक स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत लोग बताएंगे भी और सोर्सेज भी बताएंगे ही। कमिंग टू द एग्जाम पर से 200 क्वेश्चंस, उसमें से कितने क्वेश्चंस तेरे को आते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डिड यू अटेम्प्ट, एंड उसमें से हाउ मेनी क्वेश्चंस यू वर श्योर कि दिस इज द आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैड टू मेक एन एजुकेटेड गेस, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू की टोटल बाउंसर? So 193 I attempted, 7 I left. I feel I should have left more questions. I made some rash or uneducated guesses in few questions. So there -1/3 हो जाएगा आपका. NEET में I went all in. I attempted all the 200 questions, and NEET में I got 397 rank. But that time I was very underprepared. I started core preparation from January, February, and NEET was on 5th March. तो बहुत सारा syllabus covered नहीं था. But NEET में you can take that risk because -1/4 है. यहाँ पे I felt if एकदम bouncer है तो वहां पे 75% चांस है यू वोंट बी एबल टू गेट द राइट आंसर. तो -1/3 75% कंपैरिजन में क्यों कराना. तो ये चीज मेरे को स्पेशली फॉर दिस INICET थोड़ा आई थिंक जो बिल्कुल नहीं आ रहा था वो और छोड़ने चाहिए थे. माइंडसेट में बता सकते हैं व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम, तब तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट होता है कि 190 प्लस 190 प्लस हाँ 190 हाँ हाँ, वो प्लस। माइंडसेट था. बट वही दैट्स व्हाई आई अटेम्प्टेड फाइनली 193. बट आई फील इन द हाइंडसाइट कि चलो ऑब्वियसली इन द हाइंडसाइट योर विजन इज 6/6, राइट. यू फील ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लाइक ठीक 190 प्लस तो जाना. आई थिंक ऐसे ही सेट का पेपर होता है. वही माइंड तो 190. आता है ना, सीनियर्स भी ये बोलते हैं। So 193 I attempted, 7 I left, and I feel there were at least uh, आई थिंक देयर वर 30-40 क्वेश्चंस जो मिड जोन में थे, मीडियम लेवल के थे, एंड देयर आर 20-30 क्वेश्चन जो एकदम बाउंसर जाते हैं. 120-130 आई थिंक इजी होते हैं जो सभी करके आएंगे, एंड उसमें आपको गलती नहीं करनी होती है. बट आई डिड फ्यू मिस्टेक, दो सिली मिस्टेक्स ऐसे जो जिसमें 80-70% ऑफ द क्राउड जो है सही करके आ रहा होगा, एंड दैट वाज बेसिकली बिकॉज मैंने टाइम मैनेजमेंट लास्ट के 15 डेज का अच्छा नहीं रखा. आई गॉट रियली anxious in the first 6 days of the last 15 days of revision, and I did not study anything, and that made me very anxious in the last 9 days of the revision. How could I waste 6 days with zero studies? And I panicked a lot. I thought I ruled myself out of the game कि okay अब तो नहीं होने वाला selection and कुछ नहीं होने होगा. But ठीक है, anyhow because of my friends and my family members का support I could get back and get the flow back, and लगा कि ठीक है अब देखते हैं जो होता है होगा, पढ़ लेते हैं जितना होगा. And so basically end में I could only revise only 1 or 1.5 time, in the sense कई सब्जेक्ट का तो एक रिवीजन हुआ, कई सब्जेक्ट का 2 रिवीजन हुआ, कई सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही रिवीजन रह गया. ठीक है। तो बहुत हैफजार्ड हुआ एंड में. हाँ, तो मैं जितना वही कह रहा कि प्लान। आप एस्पेक्ट्स में यही कहूंगा कि आप अगर अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपके पास काफी रूम फॉर एरर रहता है. दूसरी चीज, आप अपना टाइम टेबल बनाओ. मैंने भी टाइम टेबल बना रखा था बेसिकली. कैलेंडर्स जो है आप गूगल नोट्स गूगल पे चले जाओ, फरवरी का कैलेंडर टाइप करो, एंड वो कैलेंडर जो मिलेगा उसमें आप बेसिकली मार्क कर लो कि इतने दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आप आईपैड पे पढ़ रहे हो तो मैंने तो ऐसे ही कर रखा था. तो उससे एक टाइमलाइन दिमाग में रहती कि ठीक है 7 डेज में मेडिसिन करना है या फिर 7 डेज में एनाटमी करनी है. ऐसे आप अपना प्लान कर सकते हो चीजें. एक दिन में शॉर्ट सब्जेक्ट्स को करना है, उसमें मेंशन कर सकते हो. आपकी चेकलिस्ट बना लीजिए कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से कंप्लीट करना है, उसमें क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या रह गया है. यू कीप ऑन चेक बॉक्सिंग इट, ठीक है ये हो गया, ये रह गया. तो उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया रहेगा. डोंट कीप इट इन योर हेड कि इसका ये बच गया, ये बच गया, अदरवाइज आप ओवरथिंक करते रहोगे. इफ इट नहीं, इज रिटन, इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू.
एक हाँ। टाइमलाइन होना चाहिए उसमें। लाइक 7 डेज अगर आपने मेडिसिन को दे रखे हैं, 7 डेज पूरे हो गए, इवन इफ 70% ऑफ मेडिसिन इज डन, यू मूव हम्म। ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, बिकॉज हम्म। सारा सिलेबस करना ज्यादा जरूरी है रेदर देन एक सब्जेक्ट को ढंग से करना। हाँ, अब ये हो गया, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड वाज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, राइट? सो इन दैट आई वुड से, अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट मत करो। अगर आप रूल आउट कर ले रहे हो ऑप्शन, दो ऑप्शंस पे, इफ यू कैन नैरो इट डाउन, देन थिंक अबाउट व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेट, मतलब बेस्ट ऑप्शन अमंग दोज टू। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा होगा, वहां से भी आपको काफी एक एजुकेटेड गेस लेने में हेल्प होगी। एंड रूल आउट कैसे करोगे आप? हाई फाई ऑप्शंस हैं, डमी ऑप्शंस है, वो तो हटा दो। वो गलत मेरे दिमाग, हाँ हाँ, वो मतलब आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनिसेट तो टफ पेपर है, तो हो सकता है टफ ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। नहीं, वो चीज आपको हटानी है। एंड अगर कुछ ऐसा मेंशन्ड है कि ऑल, नेवर, नन ऑफ देम, ऐसा कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ मेंशन्ड है, तो वो भी मोस्टली आंसर में नहीं होता है, राइट? बारिंग फ्यू एक्सेप्शन, जिसका आपको मालूम ही होगा, वो टीचर पढ़ा देता है कि इसमें 100% ऑफ द केसेस में ये हो जाता है, तो वो चीजें आपको मालूम रहती हैं। बट जिसमें नहीं है, तो अगर कोई 100% कह रहा है, ऑल कह रहा है, नन कह रहा है, ऑलवेज कह रहा है, वो सब आप ऑप्शन रूल आउट कर दो कि ये नहीं होगा, इफ यू हैव टू टेक अ गेस, राइट? तो बस ये हो गया। एंड ऑल्सो कि ऑलवेज एम कि आप यू हैव टू रन टू द एंड। बीच में आप क्वेश्चंस को रिव्यू कर, कई बार क्या होता है, आप पहली बार में क्लियरली थिंक नहीं कर पाते, दिस टाइम ऑल्सो इट हैपेंड। आई हैव बुकमार्क्ड फॉर रिव्यू एटलीस्ट 32 क्वेश्चंस, एंड आई वेंट बैक एंड आई कुड गेट मोर नंबर ऑफ देम करेक्ट, राइट? बिकॉज सेकेंड टाइम में आप थोड़ी क्लियर थिंकिंग से आ जाते हो और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हो। मेरा पेपर हो गया एटलीस्ट कंप्लीट, अब आराम से रिव्यू कर लेते हैं। तो तेरी क्या हाँ। स्ट्रैटेजी थी? तो वेन एवर आई गिव अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आई मतलब मैं टाइम ऐसे डिवाइड करता हूँ कि देर इज 180 क्वेश्चंस, आई हैव टू डू 200, 180 मिनट्स 200 क्वेश्चंस। सो लास्ट 30 मिनट्स में सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ फॉर रिव्यू। सो आई हैव टू डू 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस। So this is how I divide कि every हम्म। 150 minutes becomes 5 sets of 30 minutes each. So हम्म। 30 minutes में I have to complete 40 questions. So I think एक ये realistic timeline एक थोड़ी help करती है, so that आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना स्पेंड करो। अगर टाइम खत्म हो गया है तो you move on to the next question. हाँ, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से एक मतलब कैलिब्रेट कर सकते हो कि आपको कैसे चलना है। मेरा यूजुअली ऐसा था कि टाइमिंग ऑलमोस्ट यही थी, और मैंने जो 2-3 जीटीज दिए थे उसमें यही था कि 30, 34, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रिव्यू में जाते थे, आई वुड हैव 30 मिनट्स और 25 मिनट्स टू रिव्यू देम। तो यही टाइमिंग मेरा सेट हो गया था, ये पेस सेट हो गया था। बट हाँ, अगर आप और उसको ब्रेक डाउन कर सकते जैसे आपने कहा, तो आई थिंक आप बेटर वे में आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। यू आर इन कंट्रोल ऑफ द पेपर, यू आर नॉट अफ्रेड और अप्रीहेंसिव हो कि आगे कहीं ढेर सारे क्वेश्चन टफ आ गए तो कैसे मैनेज होगा टाइम, राइट? आपने स्टार्टिंग से ही मैनेज करके रखा है कि 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट्स में करने, राइट? एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तो मतलब अगर लग रहा है, और आपको ईगो फाइट नहीं मारनी है क्वेश्चन पे, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हर क्वेश्चन का वैल्यू +1 है, -1/3 मिलने वाला। सो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाइए। इस बार एग्जाम की कितनी थी? टफ था, इजी था, मॉडरेट था, लेंदी क्वेश्चंस थे, टाइम क्रंच था, एग्जाम में नहीं था? हाउ वाज द पेपर? टाइम क्रंच तो नहीं हुआ मेरे को, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बोलूंगा। एंड एटिपिकल क्वेश्चंस थे, वियर्ड क्वेश्चंस थे इस बार। एंड या काफी मतलब क्वेश्चंस इजी थे, बट उनको कॉम्प्लिकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, मतलब क्लोज क्लोज ऑप्शंस देके एंड मल्टी लेयर्ड ऑप्शंस क्रिएट करके। ABCD, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स, उसमें से भी A B is correct, B C is correct, BCD और ओनली A is correct। क्वेश्चंस होते हैं। Hmm. So there were, I think, 30-40% of the paper was had these type of questions, and बाकी वन लाइनर्स भी थे, लंबे वाले क्वेश्चंस भी थे। एंड लंबे वाले क्वेश्चंस तो आई हैड डिसाइडेड ओनली बिफोर कि इसको तो एंड में अटेम्प्ट करना, उसको तुरंत देखते ही मार्क पर कि आई विल सी इट इन द एंड, अभी इसको टाइम देना ही नहीं है कि एंड, बिकॉज आई डोंट नो मतलब ये वर्थ इट है कि नहीं इतना रीड करना, क्या सही। मालूम एंड में पता चलेगा टाइम कम है, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट या फिर लास्ट 2-3 लाइन पर ही हो जा रहा है। अभी मेरे पास हाँ। टाइम है, सो आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड में रियलाइज होगा लास्ट 3 लाइन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था, या फिर ऑप्शन रीड करके लग रहा था कि ये ये इससे रिलेटेड ही पूछ रहा है, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, इन दोनों से एजुकेटेड गेस कर, तो ये तो करना ही नहीं इन सबके। एंड मैंने ये भी प्लान कर रखा है जितने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे
वो एंड में ही देखने, मार्क फॉर रिव्यू, बिकॉज उसमें अगर टाइम जा रहा है तो मेरा जो सिंगल वन लाइनर ऑप्शन क्वेश्चंस हैं वो खराब हो जाएंगे। सही बात है। तो चलो आर्यन, एग्जाम इज डन एंड डस्टेड, पूरा हाँ। हो गया फाइनली। जो ये बड़ा गंदा टाइम होता है पीजी प्रिपरेशन ना, इवन आई रिमेम्बर आई हैवंट फेल्ट सो अंडर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डाउट जितना मुझे पीजी एंट्रेंस के टाइम पर हुआ। आपको लगता है ना कि तब भाई मैं तो कोई भी ब्रांच सेटल में हो जाऊंगा, मुझे बस इस फेज से बाहर निकालो, मुझे ये दोबारा नहीं करना है ये काम। तो हम्म। वो फाइनली एक बार खत्म हो जाता है फेज, तो एवरीबडी फील्स वेरी रिलैक्स। एंड सो विच ब्रांच आर यू प्लानिंग टू टेक नाउ? ऑफ था, ऑर्थो प्राइमरली था, एंड अभी मतलब बेसिकली थोड़ा सर्जिकल साइड पे है, एंड ऑफ था ऑर्थो प्राइमरी चॉइसेस हैं। आई होप आई गेट इट एट एम्स, एंड लेट्स सी क्या होता है काउंसलिंग में और। हाँ चलो, काउंसलिंग में अच्छे से करना थोड़ा। थिंक वन एडवाइस दैट आई वुड गिव टू ऑल काउंसलिंग एस्पिरेंट्स इज कि यू कैन रूल आउट ब्रांचेस रादर देन रूलिंग इन ब्रांचेस। एंड यू कैन रूल आउट फर्स्ट ब्रांच कि ये मुझे नहीं करनी। एंड फिर जो आपकी लिस्ट बन गई है रूल इन ब्रांचेस की, उसमें देन यू चूज द इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्योंकि हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच आप कहीं भी कर लो। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल ब्रांच करनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे मेडिसिन करनी है मेडिकल ब्रांचेस में, तो मैं सारे एम्स को पहले लिख दूंगा, एम्स बठिंडा वगैरह सब, एंड देन मैं पीट्स एम्स दिल्ली से स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं करना है। मैं बोलता हूँ कि आप कुछ ब्रांचेस सेलेक्ट करो, कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करो, हम्म। उनमें अच्छी अच्छी ब्रांचेस और अच्छे अच्छे कॉलेजेस ऊपर रख दो। फॉर एग्जाम्पल एम्स, हम्म। पीट्स एम्स दिल्ली, मेडिसिन ऐसे करके, देन सम एम्स दिल्ली। तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रांच प्लस इंस्टीट्यूट का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है, rather than just focusing on the branch. So हम्म। of them are important. चलो ठीक है देन आर्यन, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड थैंक ऑलवेज यू। टू टॉक टू अ फेलो जूनियर इन सोनियन, एंड होप टू सी यू सून इन रेसिडेंसी एंड इन द हॉस्पिटल। चलो या, गुड लक। थैंक यू गुड सो लक। मच। थैंक यू। चलो बाय बाय। बाय।